बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानूर वजीर कतुन को जबजना सुपर मार्केट इस्लामाबाद के मौजूद मा नन बद अख्तर पर तैयारियां बांधे दे खलको सरा खबरें कहूँ च दुई दे अख्तर द पारा शॉपिंग करे दे ओकना और दिन अलावा चकुम द अख्तर तैयारियां दी आगा दे दुई संग रावाने दी और दे दुई द अख्तर द पारा स अखस्ती दी और सब अखली और दिन अलावा द तिर काल पर नस्बत बांधे सख काल सीजुना सुमरा ग्रान दी पर दे मुख्तलिफ सीजुन बा د خلکو سره خبرې کوو راځئ د مونږ سره اوسئ نام عاطف علي د اختر دپاره د شاپینګ کړی دی او د الله پاک شکر دی شاپینګ هم ښه ډېر شی کړی دی او خو دا ده چې لکه مهنګایي په وجه باندې څیزونه لږ متاثره شوي دي نو چې تیر کال باندې به 3 جوړې 4 جوړې 15 جوړې اخیستې دې ځل هم 2 یا یوه دغه شانتې چې کوم دی نو حساب کتاب کړی دی ځکه چې مارکیټ ویلیوم چې کوم دی نو سیوا ده او سیزونو قیمتونه هم ډېر زیات دي او تاسو ته خپله پته ده چې وسایل او ریسورسز چې کوم دی ډېر کم دي د اختر دپاره هم څه څه اخیستي دي او څه څه به اخلئ نور هم ګوره دا خبره چې د بنده عمر په تېرېدو شي که نه نو هغه د ماشوموالي نه چې راوځي نو بیا د هغه لکه اختر کې جوړه واچي یا وانه چې نوې سپلې واچي یا وانه چې نو هغې باندې خو لکه بیا هم اختر چې کوم دی یو ښه تهوار دی د مسلمانانو یو غټ تهوار دی نو ما خو دې ځل چې کوم دی نو یو 2 جوړې او ځان له سپلې مپلې اخیستې دي نور جنکۍ خو مونږ یو نه چې بنګړي او نور داسې اورات واخلو نو بس دغه کپړې مپړې او د پښتنو چې کوم دغه تهوار شلوار کمیز دغه مې اچولي جینس پینټ وغیره چې کوم دی دغه کلو کې یا دې سیزونو کې اسم نه استعمالي که نه نو کپړې مې ځان ته کړي دي ماشومانو دپاره مختلف مارکیټونو کې تاسو هم ګرځئ سیزونه هم ګورئ د تیر کال په نسبت باندې سیزونه سخت کال څومره ګران دي مهنګایي څومره ده سیزونه ګران شوي دي او سیزونه ډېر زیات ګران شوي دي چې تیر کال باندې مونږ وړو ته کم سوټ په 500 باندې اخیستی دی نو هغه نن سبا چې کوم دی 1500 1700 باندې میلاویږي که مونږ ووایو نو د مارکیټ پرایسز چې کوم دي که نه هغه 3 ګونه 3 ګونه چې کوم دی هغه سیوا شوي دي او دا لا روان دي دا نه چې لکه داسې ودرېږي دا اوس هم په مخه روانېږي که تاسو بنګړي وګورئ که تاسو د وړو سوټونه وګورئ که تاسو د وړو سپلې وګورئ که ستاسو د وړو ایټلیسټ نکریزه کون چې خلک اخلي د هغې قیمت چې تیر کال به مونږ په 20-25 روپۍ باندې یو کون هغه 7500 روپۍ ته یو کون رسېدلی د بنګړو یو چلي چې کوم ده هغه چې به مونږ اخیستو په 50-60 روپۍ باندې هغه 150-200 ته رسېدلی دی دغه شانتې چې کوم دی نور د یو سوټ د ماشوم هغه اخیستی او د جنکو دپاره 1000 باندې هغه 3000-3500 ته رسېدلی دی نو سیزونه ډېر زیات ګران شوي دي د کم سیز خبره به مونږ کوو کم سیز به مونږ یادو لکه چې کوم والدین دي هغه هم د ماشومانو دپاره پریشان دي اکثر چې کوم غریبه طبقه ده پاکستان چې کوم ولس دی ډېر زیاتره مطلب داسې خلک شته دي چې غریبه طبقه ده چې هغه خپل ماشومانو دپاره مطلب وړه ته هم خفه وي نو داسې قسمه د خوشحالو چې کومې موقع دي هغه راشي لکه اختر چې کومې موقع دي نو دوی ورته پریشانه وي چې دوی به هغوی دپاره کپړې سپلۍ یا داسې نور چې کوم مطلب سیزونه دي هغه به د دوی دپاره څنګه اخلي نو چې کومه داسې د خوشحالۍ موقع دي په هغې موقع باندې پکار ده چې د دوی دپاره مطلب داسې قسمه مختلف سیزونه چې کوم دي هغه داسې په ارزانه بیه باندې ورته میلاو شي دوی هم په داسې قسمه خوشحالۍ په موقع باندې هغه هم د خوشحالو موقع چې کومې دي هغه دوی هم انجای کړي ورته میلاو شي او برپور دوی هم انجایمنټ مطلب موقع د هغه هم د دوی انجایمنټ مطلب واخلي مطلب هغه موقع هم دوی ضایع نه کړي نو څه نظر لرئ په دې مختلفو سیزونو باندې او ستاسو ورته پیغام څه دی خلکو ته دوکاندارانو ته چې خپله منافع هم دوی په داسې سیزونو کې کمه کېښودي ګوره الله وزیر وروره زه یو خبره تا ته کوم چې د رمضان دا میاشت چې کوم ده که نه دا د رحمتونو میاشت ده صحیح ده او مونږ په دې ملک کې یو داسې المیه ده چې زمونږ د رمضان د میاشت را شروع شي که نه نو مونږ دې ته وایو د کمایۍ میاشت مونږ دې ته وایو بیا چې د اختر ورځې را روانې وي نو دې ته مونږ د اختر څه وایو کمایانو ورځ یار ما څوک ټلیفون کې یاره اوزګار نه یم زما دغه ورځې دي زما د کاروبار دغه ورځې دي بیا د اختر له زه دوکان بندو ستاسو خبره صحیح ده چې ماشومانو له چې کوم دی خلک یو څیز اخلي او هغوی هغې ته چې کوم دی خوشحالېږي ځکه چې اختر تاسو ته ما مخکې مې وویل چې یو غټ تهوار دی او وړوکي اختر ته واړه دا ګڼي چې یاره دا د وړو اختر دی صحیح ده وړوکي اختر ته واړه وایي چې یاره دا د وړو اختر دی ځکه چې هغې ته عیدي میلاویږي هغې ته نوي سیزونه
دا شی دی چې مخکې به والدین چې کوم دی هغوی به هم ځان له یو سوټ اغوسته یو سپلی جوړه به اغوسته یا مور چې کوم دی هغې به هم ځان له کپړې اوس چې کوم دی حالات داسې دي چې مور او پلار وایي چې یاره خیر دی موږ به کمپرومایز وکړو موږ به سمجوته وکړو موږ دې وړو ته خپل سوټ چې موږ کوم اغوسته هغې په ځای به موږ دې بچو ته ورکړو چې موږ دا بچي خوشحاله شي ځکه چې اختر په ورځ په کال کې یو پیره راځي هر کال نه راځي یو اختر دپاره بنده پوره 13 ورځې یو میاشت چې کوم دی روژې نیسي د یو خوشحالي وي د وړو دپاره وي او اختر چې کوم دی هغه وي هم د وړو د لویو خو هغه اختر مونځ وکړي شي راشي بس خپل زندګۍ روزمره زندګۍ کې چې کوم دی څوک په نوکرو باندې وي ډیوټیانو باندې وي څوک چې کوم دی مشرانو سره میلاویږي هغه څیزونه اصل کې اختر چې کوم دی دیم د ماشوم خو لکه د ماشومانو څیزونه چې کوم دی هغه ډېر ګران دي پخوا به داسې چل کېدو چې یاره د اختر به وي نو خلکو به چې کوم دی ماشومانو له د اختر دپاره کیلونې م اغوستلې او ګفټونه به مې اغوستل او جوړې اوس چې کوم دی هغه کیلونې سایډ چې کوم دی خلکو هېرې کړې کیلونې شته هم نه که نه که ته ماشوم له په اختر کې 1500 روپۍ ورکړې نو د هغه یو کیلونه په هغې نه راځي ځکه چې مهنګایي ډېره زیاته شوې ده نو هغه خیر بل سایډ ته دی خو لکه د پلارانو د مور او پلار دا والدینو چې کوم دی دا یو دغه وي ارمان وي چې یاره په دې اختر کې زما دی بچي زما دی ماشوم چې کوم دی ما دی بچو دوی ښه واچولې خلکو ته ښه ښایسته ښکاره شوې او شکر دی الله پاک شکر دی چې لکه حالات خراب دي مهنګایي ډېره زیاته ده خو لکه ماشومانو ته خو تاسو دغه نه شئ کولی ځکه چې یو ماشوم تاسو ته ووایي چې یاره ما ته د اسیس پکار دی ابا ما ته د اسیس پکار دی اما ما ته د اسیس پکار دی هغې خو ته نه شي منې کولی که نه نو مور او پلار چې کوم دی خپله قرباني ورکوي او بچو دپاره چې کوم دی هغوی خوشحالولو دپاره هغوی هر قسمه خپل هغه لار وباسي چې یاره موږ د ماشومان خوشحاله شي او خلک کوي خو لکه بعضې پلاران ما دا هم لګوي چې تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره زموږ په ملک کې زیاتره لوک چې کوم دی هغه د غربت لکیرې نه لاندې ژوند تېروي هغې دپاره ډېره ګرانه ده هغې په پخوانو کپړو کې چې کوم دی کومه ښایسته جوړه کومه ښه جوړه ګوري هغه خپلو بچو ته یاره یا داسې کړي چې په تېر اختر کې اچولې یو لکه ښودي چې یاره بل اختر کې به یې ته واچې نو دغه څیزونه کوي ځکه چې غربت ډېر زیات دی نو الله دې خیر وکړي په دې ملک باندې او زما پیغام دکاندارانو ته هم دا دی او د سټال والا ته هم دا دی مارکیټونو والا ته هم دا دی چې یاره ستاسو د اختر د ورځې شوي د روژې د ورځې شوي دا چې کوم دی تاسو کم سے کم د کمایي ورځې مه ګڼئ دا د رحمت باعث وګڼئ تاسو ته چې یو څیز په 50 میلاویږي بېشک تاسو خپله ګټه ږدئ په 60 خرڅ کوئ تاسو ته چې یو څیز په 50 میلاویږي تاسو هغه په 150 باندې ولې ورکوئ تاسو ته پته چې یو غریب ماشوم دی یو غریب کورنۍ ده دونه وسې نه رسیږي تاسو خپل صدقه خیرات په تاسو خپل کوئ تاسو به مونځ اودس کوئ خو تاسو چې کوم دی دلته کې ناجایزه ګټه مه کوئ ځکه چې یوازې عبادت خدا نه دی چې ته مونځ وکړې اودس وکړې مونځ وکړې تراویح وکړې ته ذکر اذکار وکړې ته په دې باندې نه بخلی کېږي ته بخلی کېږي ځکه دا حقوق العباد دي او حقوق الله دي او ته بخلی کېږي چې کله ته حقوق العباد نه پوره کړې ته یوازې په حقوق العبادو باندې نه بخلی کېږي حقوق الله باندې نو د حقوق الله سره چې کوم دی هغې سره به ته حقوق العباد هم پوره کړې نو دا مونږ دپاره دا پکار دي چې یاره مونږ دې مخنیوی وکړو د دې ناجایزه منافعین مخنیوی وشي او د دې خلکو دپاره چې کوم دا اغوستلې دا لږ ارزان دا نه چې زه هم چېرې سټال والا دي فری ورکړي چاته فری جایز منافع ضروري ده ته چې کوم دی 50 تا د سیز ملک 60 70 باندې وکړه خو ته 100 150 باندې هغه سیز مور کوه ځکه چې بعضې خلک به داسې مجبوره ما داسې کسان هم لیدلي چې یاره هغوی راشي شاپینګ وکړي یاره شاپینګ له راغلي وي بچي ورسره وي بچو یو څیز خوښ کړي پلار چې کوم دی ځان ته وګوري جب ته وګوري یاره ما دا څیز چې کوم دی نو ما په وس کې نه نو هغه زوی ماشوم یې جاړي خو هغه چې کوم دی مجبوره شي بچی چې کوم دی دې ځای راتاله زه آیسکریم واخلم تاله زه دا اخلم په دې باندې هغه ولوغړي که نه نو دغه څیزونه چې کوم دی نه پکار او زموږ په ملک کې چې کوم دی د ملک ترقي د دې وجې نه کوي چې زموږ په خپل ځان کې یو ناجایزه منافعخور یو غل یو دغه چې کوم دی هغه موجود دی که موږ چېرته په صحیح معنو کې مسلمانان جوړ شو که نه نو زه هم چې دا ملک په د ورځې شپې دغه شان اوچت شي او ډېر زیات زر به ترقي وکړي خو چې لږه موږ خپل ځان چینج کړو ځکه چې ته اصلاح کوې که نه اول به د خپل ځان اصلاح کوې بیا به د معاشرې اصلاح کوې د خپل ځان اصلاح نه اول چې تا خپل ځان اصلاح نه کړی ته هېڅ هم نشي کولی ته بل ته چې زه خپله مونځ نه کوم زه به بل ته څنګه وایم چې یاره راځه ته مونځ وکړه زه خپله مونځ کوم نو زه به ځان سره چې کوم دی سړی بوځم که نه مونځ له نو دغه څیزونه اول د خپل ځان اصلاح پکار ده بیا د معاشرې بیا د قوم بیا د ملک دا بیا کېږي خو لکه چې ته د خپل ځان اصلاح نه کوې نو بیا چې کوم دی نو کامیابي هغه حاصلول ډېره ګرانه ده او بس دغه به ته وایم او اختر ورځې شپې دي نو د اختر اډوانس مبارکي درته وایم
आपका नाम? उमामा काशिफ। मामा, ईद के लिए क्या शॉपिंग की है? मैंने कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं और ज्वेलरी यहाँ से ली है। अब तक इसके अलावा क्या लेना है, और अब तक जो चीज़ें आपने ली हैं क्या ये बस है या और भी लेना है? नहीं, बस है। तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो चीज़ें आपने ली है महंगी थी? जी, इस बार बहुत महंगी थी। अब्बू वगैरह अम्मी पैसे दे रहे थे आसानी से, या कुछ कह रहे थे कि नहीं बस महंगी है, यही इसी इन चीज़ों पे गुजारा ही कर लें? हाँ, सारे तो पैसे चले गए हैं, बस बाबा ने दिए थे वो भी चले गए हैं। बहुत महंगी थी चीज़ें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सारिम है। मोहम्मद सालिम, ईद के लिए शॉपिंग की है? मैंने की है इधर से, बहुत चीज़ ली है, शलवार कमीज़ भी ली है, बहुत सी चीज़ें ली हैं मैंने इधर से। ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या और लेना है? मैंने एक तो वाच भी लेने, मैंने कपड़े भी लेने, शलवार कमीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर के शलवार कमीज़ लेने मैंने। और इधर से चीज़ें महंगी मिलती लेकिन बाबा मामा छोड़ते खैर ले पिछले ईद में भी मैंने इधर से ही ली थी, इधर से ही इधर दुकान में ही ली थी। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें महंगी है? हाँ, इस साल चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं क्योंकि इस वक्त का हुकूमत इस वजह से। पापा मतलब जो अम्मी है पैसे मतलब आराम से आसानी से दे रहे थे कि चीज़ें ले ले, फिर भी क्या कर लेते हैं, मतलब महंगाई तो है लेकिन चीज़ें भी मजबूरी है लेनी पड़ती है। ईद की मतलब खुशी है, मौका है, छोटी ईद एंजॉय भी मतलब ज़रूरी है। जी, बाबा माँ छोड़ते खैर ले ले क्योंकि इस ईद में हमारे घर में बहुत से लोग कज़न्स आए इस वजह से। आपका नाम? जी, रुबैका। ईद के लिए क्या शॉपिंग की है अब तक? मैंने कपड़ों के अलावा जो है वो चूड़ियाँ भी रहती हैं, तो और दूसरा ब्रेसलेट वगैरह, रिंग, बाकी जो एक्सेसरीज होती है, और कुछ गिफ्ट लूँगी अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। क्या और अपने लिए लेना है? मुझे अपने लिए तो बहुत कम लेना, दूसरों के लिए लूँगी। जैसे ये गिफ्ट हैं, जैसे ये ब्रेसलेट हो गया, रिंग्स हो गई, रिंग्स, लेकिन तो अपने लिए ज़रूरी होती है ज़्यादा चीज़ें? जी ज़रूरी होती हैं, लेकिन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वो भी मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। और आई थिंक कि जब इंसान किसी को गिफ्ट देता है, ख़ासकर किसी ओकेजन में, स्पेशली ईद पे, तो वी मेक देम हैप्पी। तो आई थिंक इट मैटर्स कि अगर हम कुछ ख़रीदें दूसरों के लिए भी अपने अलावा, तो खुशी होती है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बाकी सबके लिए। क्या क्या चीज़ें हैं अभी आपके पास? जी, इस वक्त तो जो है वो मेरी फैमिली दूसरी तरफ खड़ी हुई है, वो चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन मैंने कुछ ड्रेस वगैरह लिए थे। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें कितनी महंगी है? जी, मुझे पता था, एक्सपेक्ट कर रही थी जी, मोर देन डबल, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं चीज़ें। क्या कहेंगी आप महंगाई के हवाले से? ज़ाहिर बात है कि हर कोई ये चाहता है कि वो इस महंगाई के दौर में यानी कि कुछ रिलीफ होना चाहिए। आप यकीन करें कि मेडिसिन टू एवरीथिंग, यानी कि आपकी जो बात एक्सेसरीज़ हैं या खाना पीना है, सब कुछ महंगा है। तो ज़ाहिर बात है कि ये तो चीज़ें फिर और भी आपको पता है महंगी, और फिर वक्त के हिसाब से तो सारे, और फिर ख़ास कर वो लोग कहते हैं ये आम दिनों, अभी तो महंगाई ज़्यादा आई है ना, लेकिन इससे पहले भी ये लोग शॉप्स पे अगर आते तो वो कहते थे कि जी 1 महीना तो हमने कमाना होता है। तो अब आप इमेजिन कर लें कि वो जो पहले 1 महीना कमाते थे और अब में जो कमाने तो वो फिर कितना होगा। लेकिन जिसने जो ख़रीदना है वो ज़रूर ख़रीदेगा, जिसकी जो नीड है। ईद की खुशी में महंगाई का रोल है? रोल है, क्यों नहीं है, वाई नॉट। इसलिए कि अगर आपका बजट नहीं है इतना और आप ख़रीदना भी चाहते हैं, तो सारी बात है वहाँ पे चीज़ें तो गड़बड़ होती हैं ना, कि आप ख़रीदना भी चाहते हो और दूसरे, और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, और देना भी या लेना भी मस्ट है। तो जाहिर है कि चीज़ें तो गड़बड़ भी होती हैं और मैटर भी करती हैं, और फिर लेना पड़ता है इंसान को, चाहे थोड़ा ही ले, कोई नहीं महंगी चीज़ नहीं है तो सस्ती ले ले इंसान, फिर इंसान अब जो है वो एडजस्ट कर लेता है चीज़ों को। तो लेकिन ईद तो जो है ना वो साल में 2 बार ही आती है ना, छोटी ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, तो फिर इंसान सोचता है कौन सा रोज़ लेता है, तो चलो इंसान ले लेता है। ये बात है, महंगाई हो पिछले साल के बनिस्बत अगर इस साल, लेकिन अगर इस साल मतलब पिछले साल अगर बंदा एक चीज़ ले लेता था, तो इस साल वो अगर एक चीज़ भी नहीं ले सकता, तो फिर तो मतलब नहीं, इट्स रियली वेरी बैड फीलिंग।
क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचारे बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़ाहिर बात है कि अपने अपने उसकी जेब के हिसाब से लोग जो है वो ख़रीदारी जो है वो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ईद का त्यौहार ऐसी चीज़ है कि इंसान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बचा के कर ही लेता है अपने लिए। समन गुल। समन गुल, ईद के लिए शॉपिंग की है? जी बिल्कुल की है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद हो और ख़वातीन शॉपिंग ना करें। के लिए अब तक क्या क्या लिया है और क्या क्या लेना है? अभी तक सिर्फ मैंने कपड़े लिए हैं और मैंने अभी तक सिर्फ जूते लिए हैं। इसके अलावा अभी ज्वेलरी, मेहंदी और चूड़ियाँ जो हैं वो भी बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि पहले कपड़े खरीद लिए जाएं। टेलर्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं, और इस बार आपने ये भी देखा होगा कि दर्जियों ने इस पर पहले ही बुकिंग भी बंद कर दी थी और ऊपर से उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसा करते इस बार ख़वातीन की भी यही कोशिश थी और मेरी भी यही कोशिश थी कि हम लोग रेडीमेड्स कपड़े ले लें। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें कितनी महंगी है? ये तो आपको मैं बताती चली जाऊँ कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले साल अगर हम लोग 2-3 जहाँ पे ड्रेसेस खरीदते थे ना, इस बार ये है कि हम लोग एक जो है वो 2-3 ड्रेसेस की कीमत उसके बराबर है। तो इस बार मैंने तो सिर्फ एक ही ड्रेस खरीदा है, और इसी तरह बच्चों के तो आपको पता है वो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक जो है मिडिल क्लास फैमिली और एक जो गरीब तबका है वो तो इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि इस बार हर कोई जो है वो ईद पर नए कपड़े पहनेगा। ख़वातीन और ख़ासकर आप एक सूट पर तो गुजारा बिल्कुल नहीं करती थी, जो कि आजकल इसी महंगाई पर, तो महंगाई के इस दौर में एक ही सूट पे गुजारा मतलब करना पड़ता है या कर रही है आप? देखिए आपको पता है कि फिर अपने घर को भी देखना होता है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो फिर अपने घर को भी साथ साथ देखना होता है और फिर गुजारा भी करना होता है। क्या कर सकते हैं फिर। आपका नाम? बुशरा। ईद के लिए शॉपिंग की है? बिल्कुल ईद के लिए शॉपिंग की है, कुछ बाकी रह गई है, और कपड़े जूते तो हो गए हैं, लेकिन अब चूड़ियाँ मेहंदी की बारी आ चुकी है। और यहाँ पर मार्केट में ख़ास तौर पर हम हमेशा की तरह आते हैं, और यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं ख़ास तौर पर, और इन स्टॉल्स पर ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, और बड़ा रिलैक्स सा माहौल होता है। इसमें आप अपनी पसंद की चीज़ जो है वो बड़े आराम से सुकून से आप उठा सकते हैं, अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज आए हैं। आज तो बारी है चूड़ियों की, पसंद की चूड़ियाँ लेनी है, और इसके अलावा पे फिर मेहंदी की तरफ जाएंगे। क्या क्या और लेना है और क्या क्या मतलब जो आपने चीज़ें बताई ये मतलब रखी है घर में? बिल्कुल ऐसा ही है। जूते और कपड़े तो सबसे पहले टारगेट होता है कि हमने जो है वो दूसरे अशरे में रुख कर लेते हैं बाज़ारों की तरफ कि हमने लेने हैं। फिर उसके बाद जनाब बारी आ जाती है कि अब ज्वेलरी मैचिंग होनी चाहिए और चूड़ियाँ होनी चाहिए। तो अभी वही देख रहे हैं कि कौन सी कलर की चूड़ियाँ जो सूट के साथ मैच करती हैं वो ले लें। ज्वेलरी कौन सी अच्छी लगेगी, छोटे साइज़ में लगेगी या थोड़े बड़े साइज़ में लें, तो वो होगा। और इसके बाद जी मेहंदी होती है ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको तो पता है चूड़ियों और मेहंदी के बग़ैर ख़वातीन की ईद तो अधूरी होती है। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें कितनी महंगी है? हाँ, महंगाई के हवाले से शिकवा लाजमी करूँगी, क्योंकि जहाँ पर खुशियाँ मनाई जाती हैं तो वहाँ पर थोड़ा कहीं पर दरगुजर किया जाता है, लेकिन शिकवा ज़रूर बनता है कि चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं 3 गुना कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर भी हम ओवरऑल देख रहे हैं, मार्केट में आए हैं तो जो पिछले साल हमें रश दिखाई देता था वो इस दफ़ा हमें नहीं दिखाई दे रहा। उसकी मेन वजह यही है कि जिससे बात की जाए या मैं ख़ुद अपने व्यूज़ दूँ तो यही कहूँगी कि उसकी मेन वजह जो है वो महंगाई है, कि आपकी ख़रीदारी अगर आप कपड़े जूते खरीदते हैं तो फिर बाकी चीज़ों के लिए आपके पास बजट नहीं रहता है। तो बहुत ज़रूरी था कि महंगाई के ऊपर हुकूमत इस तरफ भी देखती और आवाम को जो है वो इन ख़ास त्यौहार पर रिलीफ मिलता और महंगाई को ज़रा कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जो हमारे त्यौहार होते हैं इसको हम भरपूर तरीके से और खुशी से एंजॉय कर सकें। महंगाई की वजह से जो ईद की खुशी है वो फीकी पड़ती जा रही हैं, क्योंकि देखिए फीकी तो पड़ती हैं जब आप पूरी अपनी शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। अगर कपड़े जूते आपने ले लिए, आप मैचिंग ज्वेलरी नहीं ले सकते, चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते, तो फिर आपके अंदर एक वो विश रह जाती है कि वो हमारी ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो त्यौहार होते हैं उस पर ख़ास तौर पर रिलीफ होना चाहिए। माह रमज़ान जो है वो हमारा बड़ा ही बाबरकत महीना है। इसमें आप खुद देखें कि लोगों की शिकवे शिकायतें हैं, और हम खुद भी ये शिकवे शिकायतें कर रहे हैं कि फ़्रूट्स की तरफ जाना ख़ास तौर पर, क्योंकि वो जो एक दस्तरखान की जीनत बनता था ख़ास तौर पर, उसकी तरफ जाना लोगों के लिए बड़ा ही मायूस कुन साबित हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल होना लाजमी है। आपका नाम?
राना तारिक मेरा नाम है जी। राना साहब क्या कहेंगे, ईद के लिए शॉपिंग की है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए उनकी ज़रूरियात तो पूरी की हैं, ज़ाहिर बात है। उनके कपड़े हैं, जूते हैं, दीगर जो चीज़ें होती हैं बच्चों की ज़रूरियात ईद के लिए, वो उनकी ज़रूरियात पूरी की हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में ख़ास तौर पर जो मुलाज़मत पेशा तबका है, तनख्वाहदार तबका है, वो तो पिस के रह गया है और उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस महंगाई के दौर में चलिए माँ बाप अपनी ज़रूरियात तो कम कर देते हैं, लेकिन बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, वो उनकी हसरत ना रह जाए। तो उस हसरत को पूरा करने के लिए माँ बाप जो हैं कुर्बानी देते हैं, अपनी चीज़ें नहीं लेते लेकिन बच्चों को लेके देते हैं। बच्चों के लिए और अपने लिए अब तक क्या क्या चीज़ें ली है और क्या क्या लेना है अब? जी अपने तो अभी तक कपड़े ही ले सके हैं, जूते नहीं खरीदे अभी तक। लेकिन ये है कि बच्चों की तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर ली हैं। अभी भी कंटिन्यूस चल रही है शॉपिंग इनकी, तो देखते हैं कहाँ तक रुकता है सिलसिला ये। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें कितनी महंगी है? जी काफ़ी फ़र्क है, 110% जो है वो महंगाई है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और महंगाई की वजह से सारी बात है दुकानदार तो मजबूर होते हैं। दुकानदार तो कहते हैं कि हमें जो चीज़ें मिली हैं उससे हम 5, 10, 15 रुपये मुनाफा रख के फिर आगे जो है बढ़े। तो सारी बात है, पीछे से अगर चीज़ महंगी मिलेगी तो आगे भी वो महंगी देंगे, पीछे से अगर सस्ती मिलेगी तो सारी बात है आगे भी सस्ती मिलेगी। तो ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। आपका नाम? आरजू। आरजू, ईद के लिए शॉपिंग की है? नहीं अभी नहीं की। तो क्या क्या लेना है ईद के लिए और अभी तक आपने क्यों नहीं की शॉपिंग, वजह क्या है? क्योंकि मैं चांद रात पे करती हूँ और अभी तक आई गेस चूड़ियाँ ही ले रही हूँ रैंडमली, कोई सी भी चूड़ियाँ। तक पिछले साल के बनिस्बत अभी आप भी एक मतलब जो स्टॉल है वो उस पे कड़ी थी, तो क्या पिछले साल के बनिस्बत इस साल मतलब चीज़ें महंगी है? चीज़ें बहुत महंगी हैं। पहले जो थी वो लाइक आपको 60 to 70 में आपको ना चूड़ियाँ मिल जाती थी, टोटल लाइक 6 और 12 आपको मिल जाती थी डोजन जो है। लेकिन अब आपको वो 130 की मिलती हैं, 150 की मिलती हैं। मैंने ये 2 ली हैं, वो भी मुझे तीनों मिला के मुझे लाइक 300 की पड़ गई हैं। तो महंगाई बहुत है। चांद रात पे मतलब चीज़ें और भी महंगी होगी, तो मतलब बंदे को स्टार्ट तो कम से कम लेना चाहिए। तो आपने अभी सिर्फ चूड़ियों से ही स्टार्ट लिया है? चूड़ियों से स्टार्ट नहीं लिया मैंने, बट लाइक मुझे पसंद आ रही थी तो मैं देख रही थी, मेरी अपनी भाभी के लिए, उनके लिए देख रही थी, लेकिन मुझे पसंद आई तो मैंने खुद भी ले ली। अभी कपड़े या जूते वगैरह कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया मैंने, कुछ भी नहीं लिया। क्या कोई ख़ास मकसद? नहीं, मैं हर साल ही चांद रात पे लेती हूँ क्योंकि रेडीमेड मिलते हैं और हमें टाइम भी उसी दिन मिलता है, तो इसलिए खैर ख़ास वो नहीं है, रीज़न नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला है। सबूर खान। ईद के लिए शॉपिंग की है? जी जी, ईद के लिए शॉपिंग करनी है, फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो ईद के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या लेना है? मैंने अभी कपड़े ले लिए हैं, मेरे जॉगर रह गए हैं, बस जॉगर लेने हैं मैंने, लाइटों वाले। मैंने भी जोगर लेने हैं, बाकी सारी शॉपिंग पूरी है। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें महंगी हैं? जी इस साल बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं क्योंकि आज आपको पता है डॉलर ऊपर चला गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ 200 की थी अब 500 रुपये की हुई हुई है। आपका नाम? यक्षा। यक्षा, ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है? के लिए अभी तो शॉपिंग कर रहे हैं, चूड़ियाँ खरीद ले हैं जो बड़ी मुश्किल से पसंद आ रही हैं। आपको पता है लड़कियों के बड़े मसले होते हैं कि मैचिंग होना चाहिए एग्जैक्ट, तो अभी तक तो चूड़ियाँ खरीदी हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या लेते हैं हम। क्या क्या ली है जो घर में भी मतलब रखी है और क्या क्या लेना है? कपड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली, अब मेरा ख्याल से अब झुमके रह गए हैं और कुछ जूते शूते रह गए हैं, अभी वो लेंगे। तो खवातीन के मतलब चीज़ें बहुत मुश्किल से उनको पसंद आती है। अभी आपको हम मतलब काफ़ी बस वही होता है ना कि खवातीन को होता है कि एग्जैक्ट मैचिंग हो, उससे ज़रा ना ऊपर हो ना नीचे हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर अब ये है कि शुक्र है मेरी तो हो गई है, बाकियों को ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि वो भी आराम से लें और अपनी पसंद की चीज़ें लें और अल्लाह करे उन्हें मिल भी जाए। अल्लाह करे सबको मतलब पसंद की चीज़ें मिल जाएं। तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें महंगी है? हाँ ये तो है, महंगाई तो हर मेरा ख्याल से हर महीने के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, मैं तो यही कहूँगी। तो बस ये है कि दूसरों का भी ध्यान रखें, जो गरीब आवाम है जो नहीं ले सकती, और बहुत से लोग अगर देख रहे हैं तो वो बहुत कुछ डोनेट करें, क्योंकि ईद का त्यौहार इसी का होता है कि मिल बैठ के बैठें और बातें करें और खुशियाँ जो है वो आपस में सारी शेयर करें। इस साल कितने कपड़े लिए थे और इस दफ़ा कितने लिए हैं और क्या कोई कमी आई है?
नहीं, औरतों के तो कपड़े बढ़ते हैं, कम तो कभी भी नहीं होते हैं। अगर कोई कहे कि कम है तो ये बहुत बड़ा झूठ है। तो कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, कम करें, लेकिन फिर बढ़ जाते हैं। तो ये कमी नहीं आई। नहीं आई, ये चीज़ है। हस्बैंड कुछ कहते नहीं है कि महंगाई है, कुछ गुजारा कर ले? नहीं, हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कहते। ईद के लिए शॉपिंग की है? यस, क्या क्या चीज़ें लिए? चूड़ियाँ, कपड़े, पर्स, टॉप्स, रिंग, सब कुछ। अब वो पैसे दे रहा था कि महंगाई नहीं है? नहीं है। सब चीज़ें लेके दिए? हाँ आपको भी लेके दिए? हाँ, क्या क्या लेके दिए? गाड़ी और तो कपड़े और चपलियाँ? चपलियाँ भी लेते दिए। और खुश हो? हाँ। आपका नाम? जी, इजहार मसूदी नाम है। इजहार साहब, ईद के हवाले से क्या कहेंगे और ईद की जो मतलब तैयारी है, ईद की तैयारी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें ली है आपने? जी, सबसे पहले तो ईद आपको पता है कि ये हमारा एक दीनी फरीज़ा भी है और एक खुशी है। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखने के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम, एक तोहफ़ा दिया है। ईद तो डेफ़िनेटली ईद की खुशियाँ मनानी भी चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं। गो के हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, महंगाई का दौर है, लेकिन फिर भी बच्चों को लेके आया हूँ, फैमिली को लेके आया हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लें और लिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेने में कितनी दुश्वारी है इस साल पिछले साल के बनिस्बत? जी, डेफ़िनेटली पिछले साल से इस साल के तो काफ़ी 35 to 40% जो है इन्फ्लेशन हुई है। उस वजह से कीमत ख़रीद बहुत बढ़ गई है और डेफ़िनेटली हमें अपनी पॉकेट को उस हिसाब से हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे कि जिस तरह से आम तौर पे हम करते हैं। तो मुश्किलात भी हैं, बट अगेन के इस बार हमने अपना प्रोपोर्शन ज़रा बच्चों के साथ ज़्यादा किया कि हम कोशिश करें कि बच्चों की, क्योंकि ईद तो होती है बच्चों से, तो इसीलिए हम बच्चों को लेके आएँ और कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट। अपने लिए क्या क्या चीज़ें लिए? जी, मैंने अपने लिए कपड़े लिए हैं, कोई अभी देख रहे हैं जूतियाँ वगैरह लेंगे, जो बुनियादी ज़रूरत की 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा कोई ऐसा तो ऐसी कोई चीज़ लेनी नहीं होती। जी, इस मौके पे मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो अपने ऐसे मुस्तहक़ीन भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें कि जिनकी कीमतें ख़रीद नहीं हैं और वो ईद के लिए नए कपड़े, जूतियाँ नहीं ले सकते। ये हमारा मिली फरीज़ा है कि हम अपने ऐसे मुस्तहक़ीन भाइयों का ख्याल रखें और उनके लिए भी हम अपनी खुशियों से कुछ हिस्सा उनके लिए वक्फ करें। आपका नाम? ओएस आहद। ईद के लिए शॉपिंग की है? ईद के लिए शॉपिंग करने आए हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आवाम भी देखी हमने, ज़ोर ज़ोर से चल रही है, तो इंशाल्लाह। अभी तक बिल्कुल नहीं की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो जब नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह जहाँ से पैसे आएंगे फिर वहाँ से शॉपिंग करेंगे हम। अभी तक भाई ने कहा कि बिल्कुल नहीं की, तो आपने की है? अगर की है तो क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या लेना है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं अभी करूँगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की भाई ने बात की, मेरे तो पापा सारा ख़र्चा उठाते हैं, तो पापा ने थोड़े बहुत पैसे पकड़ा दिए, तो मैं अभी जाके शॉपिंग करूँ। क्या क्या लेना है आपने? शलवार कमीज़ लूँगा, एक पैंट लूँगा, ये पुरानी हो के फट गई है, शर्ट में भी सुराख है, तो 1-2 शर्टें ले लूँगा। हम क्या क्या लेंगे? हमारा भी कुछ ऐसे ही प्लान है। हम शलवार कमीज़ काफ़ी अर्से पहले देखा था हमने, हमारी इस बार पूरी कोशिश है कि हम इस बार कुछ ना कुछ बनवा लेंगे। बनवाने का आपका भी इरादा है? तो अब तो टाइम बस ख़त्म है, तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल तो महंगाई भी आपको पता है कि काफ़ी महंगाई है, तो आप दोनों भी बर्डन भी पापा पे ही हैं, तो क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? तो काफ़ी महंगाई है, तो चीज़ें भी महंगी है, तो पिछले साल के बनिस्बत महंगाई भी काफ़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है पिछले साल की बनिस्बत भी है उनसे पिछले सालों की भी। तो कोशिश यही है कि बदुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों, हुकूमत से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि थोड़े हालात कोई अच्छे करें, कोई ताल्लुकात बेहतर करें, और बाकी कोशिश करेंगे जितना ख़रीद सके ख़रीदेंगे, और क्या कर सकते हैं उसके अलावा। बस सर, पिछले साल सोचा था ये साल अच्छा होगा, पर वो नहीं हुआ, तो अब यही सोच सकते हैं कि इससे बुरा ना हो, अगला साल इससे थोड़ा सा बेहतर ही हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपका पैंट का भी इरादा है, कपड़ों का भी इरादा है, तो इतनी सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल से मतलब बंदा ख़रीद सकता है। बस सस्ते से शुरू करूँगा, सबसे सस्ता शलवार कमीज़ पहले। अगर सुपर में सस्ता चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? जिन्ना सुपर में मिलती है, देखें वो शॉप है सामने बड़ी, उससे मैं साइड हूँगा ठेले पे,
वहाँ से मिल गया शलवार कमीज़ और पैसे बच गए तो आ जाएगी शर्ट, वहाँ से भी बच गया तो पैंट भी आ जाएगी। आपका क्या इरादा है? भाई ने तो बहुत आसान सा हाल बता दिया। सर हम ऐसे नहीं है, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क पे चलते हैं। एक चीज़ वहाँ से उठाई, वहाँ सिलने दे दी, वहाँ से उठाई, वहाँ कर दी। थोड़ी सी ख्वारी होती है पर थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, गेट कर रहे हैं आपके, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने तरीके से चलना है, महंगाई बड़ी ज़्यादा है। तो नौजवानों के लिए फिर आपका पैगाम क्या है? जिस तरह भाई ने स्मार्ट वर्क का बता दिया, नौजवानों को पैगाम क्या देंगे? नौजवानों के लिए यही है कि भाई मेहनत करो, मजदूरी करो और जुगाड़ ढूंढो, क्योंकि देसी कौम जुगाड़ पे वैसी मास्टर है, तो साथ मेहनत भी ज़रूरी है। बस यही पैगाम है और कुछ नहीं। मेहनत तो आपने की नहीं है और अबू के पैसे खर्च कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो तब तक पापा जब तक संभालेंगे तो संभालेंगे, उसके बाद बस इंशाल्लाह खुद कमाएंगे। तो भाई भी मेरे लिए ये है कि अगर आपका एक बार इंटरव्यू रिफ्यूज़ हो जाए तो उस पर आपने दिल नहीं हारना किसी और मुल्क का। आप दूसरी तीसरी दफ़ा जाएंगे, आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा किसी और मुल्क का। आपका नाम? मोहम्मद हसन जी। मोहम्मद हसन साहब, ईद के लिए शॉपिंग की है और क्या क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें ली अब तक? जी अभी सिर्फ तशरीफ़ लाए हैं, अभी बच्चों के लेके दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों को चीज़ें पसंद आ जाएं तो आगे देखते हैं। जो जो बच्चे पसंद करते हैं, ईद की शॉपिंग बच्चों की अभी करवानी है। अपने लिए कपड़े, जूते वगैरह चीज़ें लिए? हाँ जी, अपने लिए तो परचेज़ कर ली हैं, अभी और कोई चीज़ देखते हैं, अगर पसंद आ गई तो इंशाल्लाह ज़रूर परचेज़ करेंगे। तो पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें कितनी महंगी है? 50% अभाव हैं पिछले साल की निस्बत। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले बहुत कीमतें मुनासिब हुआ करती थी, लेकिन अभी पहुंच से बहुत दूर है हमारे से। लेकिन मजबूरी है कि बच्चों के लिए हर चीज़ खरीदनी है, इसलिए बच्चों को तो खुशी ज़रूरी है। जब बच्चे खुश हैं तो सभी कुछ है, इसलिए बच्चों को हम लेके यहाँ आए हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ पसंद कर बच्चों को होता है तो ज़रूर लेके देंगे। बच्चों के बगैर अगर मतलब बच्चों की खुशी और ईद के मौके पर अगर उनकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर उनकी खुशी मतलब अधूरी रह जाती है। अगर उनकी चीज़ें पूरी नहीं होती तो क्या कहेंगे, मतलब पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आबादी है वो गुर्बत के मतलब उससे नीचे है, तो इस तरह के मौके पर क्या करना चाहिए लोगों को, ख़ासकर जो मतलब मालदार तबका है उनको, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? अब जो जिस तरह जो नॉर्मल लोग हैं वो तो बेचारा अपना वक्त गुजारेगा। जो बिल्कुल गरीब है उसके लिए, जो साबे सरवत हैं, जो अमीर हैं, जिनकी जेब में इतनी आमदन है, उनको चाहिए उन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ मदद करते रहें ताकि वो भी अपनी बच्चों की खुशियाँ दुआला कर सकें ईद की। साइमा। साइमा, ईद के लिए शॉपिंग की है? जी। क्या क्या चीज़ें लिए ईद के लिए और क्या क्या लेना है? चूड़ियाँ, जूते, कपड़े। बस अभी आज तो चूड़ियों की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, बच्चों की भी ख़रीदारी करनी है ईद की, तो आज चूड़ियाँ और जूते, मेहंदी, कपड़े वगैरह सब लिए घर रखे तो हो गए हैं। बस आज मेहंदी और चूड़ियाँ, ये चीज़ें आज करनी है। पिछले साल के बनिस्बत इस साल चीज़ें महंगी है? बहुत ज़्यादा महंगी है, मत पूछें। महंगाई ने तो इस दफ़ा बुरा हाल किया हुआ है। महंगाई की वजह से टेंशन है? काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक स्टाल से दूसरे स्टाल, तीसरे स्टाल, बिल्कुल ऐसा ही है। या बच्चों से यही कह रहे हैं, देख लें शायद कुछ आगे जाके कुछ सस्ता मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रही। होने का कोई नाम निशान नहीं है। कुछ नहीं लग रहा कि सस्ते कुछ मिलेगा आज हमें। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कि सस्ता हमें कुछ मिलेगा। महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से कुछ भी नहीं कह सकते। पूरा रमज़ान ही हम महंगाई करते ही रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। हम वो कौम है जो खुद कुछ नहीं करते। जब हम खुद कुछ नहीं करते तो हमें किसी और से गिला नहीं। स्तासु नाम? ज़मंग नाम जी एहसान दे। दख्तर दे पारा दे शॉपिंग करे दे? आओ जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हम करे और आगली उदलते बस गुरु उस उदलते सखशी पे के मिलाओ शी इंशाल्लाह बाकी गर्ज़ नूर। आओ जी दे पारा दे सस अखस्ती दी और सस बाखले बस कपड़े मपड़े हम अखिस्ती दी इंशाल्लाह उस रागली उदलता गा इंडियोर हम कतलो इंशाल्लाह नो शूज़ मुज़बम पके आलू भी अख्तर दा पारा सपनाई मपलाई में पके दे शहर से दिवाले पके वालू इंशाल्लाह। आओ जी द तेर काल पर निस्बत बंदे सख काल सीजोना ग्रांडी आई थिंक लग एक्सपेंसिव दी खो इंशाल्लाह लगा उम्मीद शरे छे दे पर इलेक्शन उशिनो इंशाल्लाह हालात बखशी उम्मीद हम शरे ग्रांडी सीजोना मतलब मशरूमान दर सर रगल दी मशरूमान बकूर के सीजोना दर नगवाड़ी वगा खुवाड़ी खो अल्हम्दुलिल्लाह बस की फिलहाल हालात तीरी के अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह खदी ग्रांडी सीजोना
یاره مخکې نه خو تقریبا یو 3% به پکې پاس شي نو مطلب 100% هم کراس کړي دي پاس تللی 150 ته برسي اوسه ستاسو نام عاقب جاوید عاقب جاوید د اختر لپاره شاپینګ کړی دی الحمدلله ټول شاپینګ مې کړی دی صرف شوز پاتې دي هغې لپاره راغلي یو شوز مې خوښولو خو شاهینه چې کوم دي دلته دومره ایکسپنسیو شوي دي چې اخیستو نه ووتي دي بالکل د لپاره مو څه اخیستي دي او څه به اخلئ جوړې خو مې اخیستې دي هغه شوي دي او شوز پاتې دي او لږ څه نوره سامانونه دي بچو دپاره وړو دپاره او دلته چې کوم ماحول ګورو که نه هغه تیر اختر کې چې کوم و هغه ډېر زیات ریټونه ډاون و نن سبا ډېر زیات های شوي دي ډېر زیات چې کوم اخترونه راتلل نو خلکو به یو دوه درې مطلب زیاتې کپړې به خلکو اخیستې لکه خاص کر د ستاسو په شانتې ځوانانو نو سخت کال د څو کپړې اخیستې دي تیر کال تقریبا 4 مې اخیستې وې دې پېرې مې 2 اخیستې دي مطلب داسې دی چې مهنګایي زیاته شوې ده په تا باندې یې هم اثر کړی دی نو سخت کال چې کومه مهنګایي ده نو مطلب زیاته شوې ده حد نه زیاته شوې ده یو زیاته یو حد نه زیاته شوې ده نو زیاتې اثر نو دا دی چې تیر کال مې څلور کړی وې دې پېرې مې 2 وکړې نو دا اثر دی که نه څه نظر لرئ په مارکیټ کې چې کوم سیزونه دي نو هغه ګران دي مطلب مهنګایي سوا ده او چې کوم ماشومان دي مطلب هغه چې کوم سیزونه دي هغه هم درنه غواړي تاسو هم راغلي مارکیټ کې ګرځئ نو چې کوم تپوسونه کوئ مختلف چې کوم قیمتونه دي هغه سوا شوي دي هغه ډېر سوا شوي دي د پهله په نسبت تقریبا 100 خو پار دي زه وایم چې 150 ته به رسېدلي وي دونه سوا شوي دي چې 100% مهنګایي هغه زیاته شوې ده ډېره زیاته شوې ده او بس اللہ دے رحم کی آپ کا نام میرا نام راشدہ ہے راشدہ کیا کہیں گی عید کی شاپنگ کے حوالے سے عید شاپنگ جاری ہے عید شاپنگ ہو رہی ہے بس اسی لیے آئے ہیں یہاں پر اور عید کی شاپنگ کے لیے ابھی تو چوڑیاں دیکھ رہی ہوں بڑی پیاری خوبصورت چوڑیاں ہیں یہاں پر اور میں نے ویسے چوڑیاں کبھی اتنی پہنی تو نہیں ہے لیکن عید پہ ضرور پہنتی ہوں کیونکہ عید تو پھر چوڑیوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے خواتین کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے مزیدار سی کلرفل چوڑیاں اویلیبل ہیں آلدو تھوڑی مہنگی ہیں بٹ پھر کیا کریں ظاہر ہے جب چوڑیاں پہننی ہیں جب عید گزارنی ہے تو پھر پیسے تو خرچنے ہوں گے نا عید کے لیے اب تک کیا کیا چیزیں لی ہیں اور کیا کیا لینا ہے عید کے لیے ابھی تک آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں میں نے ہمیشہ سے میرا یہ ایک وہ ہوتا ہے پلان ہوتا ہے کہ میں چاند رات پہ جا کے شاپنگ کروں گی 1-2 دن پہلے شاپنگ کروں گی تو ابھی تک تو ایسا کوئی پراپر شاپنگ نہیں کی ہے گفٹس لیے ہیں بہت سارے جو دینے ہیں لوگوں کو عید کے تحائف ابھی بھی میں کچھ تحائف ہی لے کر آئی ہوں اور اپنے لیے شاپنگ جو ہے وہ چاند رات پہ ہوگی انشاءاللہ مہنگائی ہے ظاہری بات ہے مطلب مہنگائی کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں تو پچھلے سال کے بنسبت ابھی چوڑیاں آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے تو کتنی مہنگائی ہے کیا واقعی مطلب چیزیں مہنگی ہوئی ہیں بالکل جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس نے لوگوں کی قوت خرید جو ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہاں پر چوڑیاں دیکھی ہیں اور چوڑیوں کی پرائس بھی مجھے لاسٹ ایئر کی نسبت زیادہ محسوس ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ جو بچیوں نے خاص کر کے لینا ہوتا ہے اور سجنا سنورنا ہوتا ہے باقی جہاں پہ لوگوں سے بات جب آپ کریں نا تو اب ہمارے کچھ ریلیٹیوز یا فرینڈز وغیرہ ایون وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارا اپنا بھی یہی پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جہاں ہم نے 5 جوڑے لینے ہوتے تھے وہاں اب ہم 2 پر آ گئے ہیں اور اگر کسی نے 2 لینے ہوتے تھے تو وہ 1 پر آ گیا تو یہ یقیناً فرق پڑا ہے اور وہ جس طریقے سے شاپنگ ہم پہلے کھل کر اور بے فکری سے کرتے تھے اب ویسی نہیں ہو رہی ہے وہ بے فکری ختم ہو گئی ہے وہ بے فکری اب فکرے ہی فکرے ہیں تو ہم حکومت سے کہیں گے کہ پلیز مہنگائی کنٹرول کریں اور اسپیشلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں اور عید کا موقع ہے تو عید کے موقع کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پیٹرول وغیرہ کم کرتی لیکن انہوں نے بڑھا دیا ہے تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کہیں اینڈ وی کین اونلی ہوپ کہ مہنگائی میں کمی ہو اور جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے نہیں جی بالکل افسوس ہے لیکن آج اس موقع پہ زیادہ افسوس کی بات نہیں کروں گی کیونکہ عید کا موقع ہے خوشیوں کا موقع ہے تو یہ ضرور میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ پلیز جیسے میں نے کہا کہ میں نے گفٹس لیے ہیں آپ کے جو دوست ہیں فرینڈز ہیں جو ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے تحائف لیجئے گا اگر اپنے لیے چیزیں بہت ساری پہلے ہی اویلیبل ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو دیں تاکہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ ان تک بھی پہنچیں کتونکو د اختر د شاپینګ په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې دوی دا و چې د دوی چې کوم شاپینګ دی هغه
په جوش او خروش سره روان دی خو دوی دا هم وویل چې د دوی چې کوم شاپینګ دی هغه د مهنګایي د وجې نه داسې خاص نه دی د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان